In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Well, the person who is in front of you, well, my name is Muhammad Murad Alam. I hope you all are good and fantastic. First of all, I would like to very thankful to my teacher who gave me a chance to present the most important thing and the most important habits, which name is The 7 Habits of Highly Effective People, written by Stephen R. Covey. If I talk about summary of this book divided into three parts. First is a first part of 1 to 3 habit is a personal management, and the second part of 4th, 5th, 6th habit is a public victory or leadership, and the 7th habit is a personal development. Now we talk about the first habit, which name is be proactive. There are two types of people. First is reactive, second is proactive. Uh, Reactive people also blames on other, for example, they fail in their exams, they blames on teacher. They fail in their life, they blames on outside the people. If inflation is increased, they blame on government. Reactive people also depends on weather. If weather is good, they feel good. If weather is not good, they don't feel good. Reactive people also survive the whole life. It's very comfort zone. That's why they don't success in their life. Reactive people don't take responsibility. Always demonstrate very frustrated. That's why they don't success in their life. Now we talk about the proactive people. Proactive people also take responsibility. If Here I define the definition of responsibility. First is response, second is ability. If I have an ability, definitely I take response. If I haven't ability, I don't take response. Here author define the definition of responsibility. Second thing is that proactive people don't blame on others. They create the whole situation on their own. Proactive people always find a solution rather than create a problem. Proactive people find an opportunity than problems. Proactive people always take decisions and survive the whole life. It's very comfort. That's why they success in their life. Now we talk about the second thing, which name is begin with the end in mind. This habit is a vision based and mental creation, like planning, vision, mission, and so on. For instance, you are sitting in the room of a corner and assume this funeral is yours, and different types of people are coming in your funeral, families, friends, professionals. Uh, they are coming in your funeral, and you have to assume what is saying about you. If they feel negative thought, you will have to understand what the reason why people keep negative thought about me. uh, if I given second example in एदी साहब, अगर एदी साहब की हम बात करें तो उन्होंने बिगिन विद द एंड ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखा और इन्होंने एक अपना विजन बनाया कि किस तरीके से इसको जो है वो अपनी लाइफ में इसको लेके चलना है। इसीलिए उन्होंने एदी साहब ने क्या किया कि अपनी होल लाइफ को एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट एक क्राउन क्रिएशन में सर्व कर दिया, और उनके जाने के बाद भी आज लोग इनको एक अच्छे नाम से याद रखते हैं। नाउ द सेकंड एग्जांपल इज द डूम्सडे। बीइंग अ मुस्लिम, इफ आई टॉक अबाउट द डूम्सडे, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि टूम हेयर आफ्टर लाइफ जो है वो हमारी लाइफ किस तरह होगी, कि हमें रिक्रूटल के तौर पर हमें पैराडाइज दिया जाएगा या फिर हमें पनिशमेंट दी जाएगी। यहाँ पे हमें ये एवेलुएट करना है कि हमने किस तरीके से अपनी होल लाइफ को सरवाइव करना है। हेयर आई वांट टू गिव एन स्पेशल सेंटेंस लाइक बिल्ड द कैसल इन द एयर,
कि अपने आप में और अपनी मेंटल क्रिएशन ऐसी रखनी है कि हमने बड़े से बड़ा सोचना है, जितना थिंक बिग अचीव। तो जितना बड़ा हम सोचते हैं उतना ही बड़ा हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करना ये बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू create mental creation. After that we'll have to how we can execute. Now we talk about the third habit, which name is put first thing first. This is a physical creation and it is a prerequisite and interconnected habit 1 and 2. Habit 1 and 2 is a prerequisite of habit 3. This habit is simple to understand but difficult to implement. Here author define the four quadrant of time management. First is important, not important, urgent, not urgent. Here I talk about the first habit. First quadrant is urgent and important. This is compulsory to everyone. If you do not implement these habits, you will be lost. For example, you don't give exams, definitely you will fail. And if you don't pay the utilities bill, definitely you will pay extra charges after due date. And now we talk about the second quadrant. Second quadrant is a effective people quadrant. Author focus these habits to adopt the second quadrant, which is important but not urgent. This is a vision based and planning based. This quadrant is a quality of quadrant. Like if I want to start a business, first of all I'll have to create a report. Then I'll see कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है और नॉट इम्पोर्टेंट क्या है। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे दूंगा, उसके बाद सेकंड पे मैं नॉट इम्पोर्टेंट को मेंशन करूंगा। तो यहाँ पे ऑथर हमें यही बता रहा है कि हमने जो है वो पूरी एक प्लानिंग करनी है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू बी अ कंटेंट राइटर, first we'll have to understand how can we achieve this task. First I divided first year into 12 months, 12 months divided into 1 month, 1 month divided into 4 weeks, 4 week divided into 1 week, and 1 week divided into 1 day, 1 day divided into 1 hour. Then we execute के एक दिन में मुझे 1 घंटा या 2 घंटा इस टास्क के लिए मुझे अपना टाइम निकालना है। देन उसके बाद ही मैं इसको अचीव कर सकूँगा। तो यहाँ पे ऑथर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में यही बता रहा है, अगर आपको इफेक्टिव और एफिशिएंट बनना है तो क्वाड्रेंट सेकंड को आपने एडॉप्ट करना होगा। क्वाड्रेंट थर्ड एंड फोर्थ इज़ अ वेरी आइडल क्वाड्रेंट, जिसमें ऑथर भी मना कर रहा था कि आप इसको एडॉप्ट ना करें। लाइक सोशल मीडिया, वेस्टिंग ऑफ टाइम इन गैदरिंग एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं होती, अर्जेंट भी नहीं होती, जिसे हम फिर भी अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके उसको एक इनइफेक्टिव पीपल्स की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं। तो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट में हमें ये देखना है कि अगर हमें एक इफेक्टिव बनना है तो फर्स्ट वील हैव टू अडॉप्ट द सेकंड क्वाड्रेंट विच इज़ इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। Now we talk about the fourth habit, which is win-win situation. Win-win situation is not a technique. It's totally psychology of human interaction. Win-win actually think win-win habit of interpersonal leadership. Here I give an example. If my manager assign me a task which date is 2 days, we'll thoroughly go through either I can do individually or not. अगर इसको मैं नहीं कर सकता तो I'll help my team members.
तो इसमें मैं अपने टीम मेंबर से ये गोल्स को अचीव करने की कोशिश करूँगा। जब मैं बिफोर टाइम इसको अचीव करता हूँ और उसके बाद जब मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ अपने मैनेजर्स के पास, तो वो एक वंडर्ड, एक अमेज फील करते हैं कि हाउ कैन इट पॉसिबल कि इसको आपने बिफोर टाइम अचीव कर लिया। देन ये इनवाइट मी कि आपने मैनेजमेंट के सामने जो इसको प्रेजेंट करना है कि हाउ कैन अचीव द होल एक्टिविटीज बिफोर डेडलाइन। नेक्स्ट I elaborate the whole thing like अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर मैं मैनेजमेंट के सामने अपने टीम मेंबर्स को एलिब्रेट करता हूँ तो मैं यहाँ पे विन विन सिचुएशन क्रिएट करूँगा। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अगर मैं अपने आप की एग्जॉजरेट करता रहूँगा तो मैं यहाँ पे विन विन को क्रिएट नहीं कर पाऊँगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं विन लूज का कॉन्सेप्ट और विन लूज सिचुएशन को क्रिएट कर दूँगा, जो कि मेरे लिए एक इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि बात के लिए फिर इट इज़ डिफ़िकल्ट कि मैं इसको फिर अपने दूसरी दफ़ा फिर मैं इसको टाइमली अचीव नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मुझे विन विन सिचुएशन को क्रिएट करना है। फर्स्ट कीप इट इन योर माइंड कि विन विन सिचुएशन जो है वो लॉन्ग टर्म में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेटली 2 टीम है तो एक को जीतना और एक को हारना है। तो विन लूज का कॉन्सेप्ट जो है वो हर जगह होता है, लूज विन विन लूज विन विन लूज लूज। तो हमें यहाँ पे जो अतर बता रहे हैं कि अगर आपने विन विन सिचुएशन को लेकर आना है तो आपको एक इफेक्टिव पीपल बनना पड़ेगा, देन आप एक विन विन सिचुएशन को क्रिएट कर पाएंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द फिफ्थ हैबिट इज seek first to understand and then to be understood. Communication is the most important skill in our life, because we are talking about leadership, and leadership do not work in individual, they work get together. That's why communication is the important part. I give an example like हम जो है वो अपना KG1 से मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स हम स्पेंड करते हैं लर्निंग करने के लिए, क्या राइटिंग में एंड स्पीकिंग में एंड रीडिंग में, बट नॉट कंसंट्रेट इन लिसनिंग। दैट्स वाई हम जो है वो पुअर लिसनिंग की तरफ आ जाते हैं, और पुअर लिसनिंग जो है वो एक बैड इम्पैक्ट डालता है आपके मैनेजमेंट पर और आपकी लाइफ पर एक बैड इम्प्रेशन डालता है। तो यहाँ पे हमें जो है वो फर्स्ट अंडरस्टैंड करना है इश्यूज़ को, उसके बाद जो है वो हमने इसको देखना है कि हम इसको किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक आई गिव अनदर एग्जांपल related to salesperson. A marketer diagnose the customer need, then after they develop a product. If they don't diagnose, definitely you will fail in their life. विदाउट डायग्नोज अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो आपका लॉस ही होना और कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके प्रोडक्ट सेल ही नहीं होंगे। अगर आप डायग्नोज करते हैं कस्टमर की नीड को, अगर आप सामने रखते हुए ये देखते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसी को अचीव करते हुए अगर आपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो डेफिनेटली यू विल सक्सेस इन बिजनेस। तो इसी तरीके से हमें अपने पर्सनल लाइफ में, फैमिली में, फ्रेंड्स में एंड ऑर्गेनाइजेशन में और कम्युनिटी में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हमने हमारे अंडर में जो काम कर रहे हैं, फर्स्ट जो है वो हमने उसको लिसन करना है। अगर हम उसको अच्छे तरीके से लिसन करते हैं तो उसके बाद ही वी कैन प्रोवाइड अ बेटर सॉल्यूशन। Then we talk about the sixth habit, which is synergize. It is my favorite habit. Synergize means the whole is better than the sum of its part. Like if I talk about the arithmetic says
arithmetic says is 2 plus 2 is equal to 4, but I talk about the synergize. Synergize says 2 plus 2 is equal to 22 or more than 22. How other give an example here. दो लोग जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते हैं और उसमें उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि जो एक शख्स है वो 8 घंटे कंटिन्यू काम कर रहा है, जबकि दूसरा है वो 4 घंटे काम करता है, 4 घंटे आराम करता है। यहाँ पे देखा ये गया कि जो 8 घंटे नॉन स्टॉप काम कर रहा है, कोई रेस्ट नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, वहाँ पे वो कंटिन्यू काम कर रहा है। लेकिन जो दूसरा है वो वर्क को स्टार्ट करने से पहले वो क्या करता है कि अपने जो तमाम जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो उसको सही करने की कोशिश करता है। Now we talk about the six habits which name is energize. Energize means the whole is greater than the sum of its parts. If I talk about the arithmetic perception, arithmetic says 2 plus 2 is equal to 4. If I talk about the synergized situation, synergized says 2 plus 2 is equal to 22 or more than 22. Because two minds are greater than one mind. यहाँ पे ऑथर जो है एक्सपेरिमेंट अपना शेयर कर रहा है, वो ये कहता है कि हमने इंडिविजुअली 2 लोगों को टास्क असाइन किया। इंडिविजुअल हमने ये बताया कि आप जो है वो एक दिन में 20 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, इंडिविजुअली उनको ये टास्क असाइन कर दिया। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे वो उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं कि उन्होंने जो हमने टास्क उनको असाइन किया था कि उन्होंने उसको कंप्लीट किया या नहीं किया। तो एंड में वही देखते हैं कि दोनों ने इंडिविजुअल जो हमने टास्क बताए थे वो अचीव कर लिया। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे क्या किया कि एक सिनर्जाइज क्रिएट किया, दोनों को कंबाइनिंग टास्क दे दिया और कहा कि आप जो है अब इससे ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करें। टू माइंड आर बेटर देन वन। जब 2 दिमाग मिलते हैं तो एक न्यू चीज़ क्रिएट होती है। तो यहाँ पे ऑथर ने यही बताया है कि जब हमने उन दोनों को मिलाया तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हुई। इसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपने जो है वो थॉट शेयर किए एक दूसरे से, उसके बाद उन थॉट को एग्जीक्यूट किया एफिशिएंटली और इफेक्टिवली इस काम को इन्होंने अचीव किया। तो यहाँ पे आकर यही बता रहे हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में या फैमिली में या कम्युनिटी में एंड सो ऑन आपको एक सिनर्जाइज क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम को करवाना चाहते हैं। तो सिनर्जाइज जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आज के दौर में, और शुरू से चलता हुआ आ रहा है और अब जो है वो इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो गई क्योंकि हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज इतने हो चुके हैं। अब हमें जो है वो इन रिसोर्सेज को इफेक्टिव और एफिशिएंटली इसको यूटिलाइज करना है। तो सिनर्जाइज में यही कॉन्सेप्ट ऑथर हमें दे रहा है। सेकेंड एग्जांपल ये है कि हमने ये भी देखा है कि जब अब फ्लाइट ऑफ बर्ड जब फ्लाई कर रहे होते हैं आसमानों पर, तो आपने देखा हो कि जब भी फ्लाई कर रहे होते हैं तो एक वी शेप में जो है वो जा रहे होती है। तो इसमें हमने देखा कि जो वी शेप में जा रहे थे एक लीडर होता है जो कि उनको गाइड कर रहा होता है और उसके पीछे फॉलोवर जो कि उनको फॉलो करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। तो इनसे भी जो है वो हमें सबक देना चाहिए कि जिस तरह परिंदे वो अपने एक मंजिल तक पहुँचने के लिए लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं और एक एनर्जाइज क्रिएट करते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं। इसी तरह अगर हम भी अपने जो है वो सराउंडिंग अगर इसको क्रिएट कर लें एनर्जाइज को, तो हम इफेक्टिवली इस काम को अचीव कर पाएंगे और बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दे पाएंगे।
about the 7 habits, which name is sharpen the saw. Sharpen the saw means sharp yourself. फॉर एग्जाम्पल अतल यहाँ पे डिफाइन करता है कि दो लोग जो है वो जंगल में जाते हैं लकड़ियाँ काटने। अब एक जो आदमी है वो नॉन स्टॉप 8 घंटे काम कर रहा है, दूसरा जो है वो 4 घंटे काम और 4 घंटे रेस्ट कर रहा है। अब इस पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, जो 8 घंटे नॉन स्टॉप काम कर रहा है वो अपने सौ को शार्प नहीं कर रहा। ऑन द अदर हैंड जो 4 घंटे वर्किंग और 4 घंटे पे जो रेस्ट कर रहा है वो अपने जो सौ को वो शार्प कर रहा है। तो हुआ ये कि जब वो काम स्टार्ट करता है तो उससे पहले शार्प करता है, फिर उसके बाद लंच के बाद फिर वो दोबारा उसको ब्रेक के बाद दोबारा उसको शार्प करता है। तो इस तरह ये कि उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इन्हेंस हुई रादर देन के ये जो नॉन स्टॉप काम कर रहा है बनस्बत इसके। अब देखा ये कि शार्पन द सॉ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपने सॉ को शार्प नहीं करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट आएगा। अब इसी तरह ऑथर जो है वो बता रहा है कि अगर आपने अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को अगर आपने शार्प करना है तो यहाँ पे वो 4 डायमेंशन को मेंशन कर रहा है जो कि आप अपनी लाइफ को रिन्यू कर सकते हैं। फर्स्ट वो बता रहा है कि आपने फिजिकल डायमेंशन रखना है। फिजिकल डायमेंशन का मतलब ये है कि आपने हेल्थी फूड लेना है, एक्सरसाइज करना है और स्ट्रेस मैनेजमेंट देखना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं स्ट्रेस में हूँ या फिर एक कंफर्ट जोन में हूँ तो मैं किस तरह इसको टैकल कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम को। तो आपको इसकी भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और इसके बाद आपने मेंटल डायमेंशन को देखना है। मेंटल डायमेंशन जो है वो मेरा फेवरेट है। इसकी वजह ये है कि मेंटल डायमेंशन में वो बता रहे हैं कि आपने रीडिंग और राइटिंग की पावर को इन्हेंस करना है। तो ये होगा कि आपकी जो माइंड की जो प्रोडक्टिविटी है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, जिससे आपके अंदर एक क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वो यही फोकस करना चाह रहा है कि हमने अगर इफेक्टिव बनना है तो हमें इस पर फोकस करना पड़ेगा। हम अगर मैं बात करूँ तो हम अपने सिलेबस को ही सही तरीके से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं होती है एजुकेशन की। तो यहाँ पे मेंटल डायमेंशन में वो यही हमें बता रहा है। इसके बाद स्पिरिचुअल डायमेंशन में वो ये बता रहा है कि आप जिस भी रिलीजियस से कनेक्ट है वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक कंफर्ट फील कर रहे होते हैं, आपको सुकून मिलता है इबादत करने में, अच्छे लोगों के साथ बैठने में आपको बड़ा सुकून मिलता है। तो वहाँ पे भी अगर आप जाते हैं तो अपने एक स्पिरिचुअल डायमेंशन को एक अच्छे तरीके से फील कर रहे होते हैं। और फोर्थ में वो बता रहे हैं कि सोशल और इमोशनल डायमेंशन ये भी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि आप इंडिविजुअल कोई काम नहीं करते हैं। आप जब भी काम करते हैं वो क्या करते हैं कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में काम कर रहे होते हैं लोगों के साथ मिलके। तो यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो उतनी ही अच्छी होगी। तो यहाँ पे वो 4 डायमेंशन से बता रहा है कि हम ये 4 डायमेंशन को यूज़ करते हुए अपनी जो है वो शार्पन योर सेल्फ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये एक बुक की समरी आपको डिफाइन करने की कोशिश की। आई होप कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।